This conference will now be recorded. Okay, so we last discussed a few basic programs based on if else, and today we also discuss some other code. I'm inputting two number num1 num2 ठीक है based on modulus operator ठीक है and I want to find even and odd numbers ठीक है if I input a number no need to input two numbers, just I'm inputting a single number num and I want to print a even or odd, right? I'm showing you the condition. You know that 5 is a odd number, okay, and 6 is a even number, 12 is a even number, 0 is a even number, 1 is a odd number, है ना? तो एक सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन है. If a number, if a any number divided by 2, okay, and if after division there is any remainder excepting 0, ठीक है, एक्सेप्टिंग 0 को छोड़कर, ठीक है, तो वो नंबर कैसा है? वो नंबर ऑड नंबर है ना? तो हमें यही फंडा यूज करना है कि हम जो भी नंबर इनपुट कराएंगे उसको हम 2 से डिवाइड करेंगे. बेसिकली 2 से डिवाइड नहीं करेंगे, 2 से उसको मॉड्यूलस करेंगे, क्योंकि लास्ट मैंने आप लोगों को बताया था कि मॉड्यूलस ऑपरेटर हमें रिमाइंडर रिटर्न करता है ना? और आई थिंक मैंने इस पर बेस्ड आपको प्रोग्राम भी कराया था. अगर एक बार मैं आपको फिर से एक छोटा सा कोड जल्दी से लिख देता हूँ. Let's suppose I am declaring two variable a comma b and a comma b, and if I am taking 10 a equal to 10 and b equal to 3, if I am taking, right, I'm printing printf and percentile d comma a modulus b. Okay, give me the answer on chat box. So in that case, if I run this code, what will be the output? You know that that modulus operator return a reminder value. Okay, I received one answer. Let me check. Okay, that's good. Any other answer? देखिए, if I'm saying 10 modulus 3, just divide के जैसा ही है, बस हमें रिमाइंडर याद रखना है. तो 3 3s are 9. What is the remainder 1? तो आउटपुट में हमें क्या रिटर्न मिलेगा? इस परसेंटाइल डी पर हमें रिटर्न मिलेगा 1. ठीक है, लेट मी रन दिस कोड. ओके, and you can see the output is 1. That means what? Reminder, right? तो सेम वे अगर हम अपने लॉजिक में यही लगा दें कि भाई अगर हम कोई भी नंबर अगर इनपुट करें, है ना, कोई भी नंबर हम इनपुट करें और अगर रिमाइंडर 0 के अलावा कुछ भी है, ठीक है, तो वो क्या करे? हमें शो कर दे क्या कि भाई ये जो हमारा है वो इवन वैल्यू नहीं है, ऑड वैल्यू है. 0 के अलावा कुछ भी करे, और अगर 0 ही करता है तो क्या रिटर्न करे? कि वो हमारा इवन नंबर है, राइट? तो क्या करना होगा? बस सिंपल सा काम है, एक पहले मैसेज डालते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं एंटर ए नंबर, enter a number equal to, and I'm doing scanf percentile d comma address of num, right? It is done. And what I need to do, if कंडीशन लगाएंगे, if num इक्वल है, सॉरी, if num मॉडुलस 2 इक्वल है 0 के, है ना, तो वो नंबर क्या होगा?
तो नंबर क्या होगा? नंबर होगा हमारा इवन नंबर, इवन नंबर, है ना? आई कैन प्रिंट परसेंटाइल डी कॉमा परसेंटाइल डी कॉमा any num and comma, sorry is even number comma num. ठीक है, दिस इज माय रिक्वायरमेंट. अच्छा, एक चीज और देखिए कि मैं यहाँ पर एल से स्टार्ट कर रहा हूँ, है ना? लास्ट मैंने आपको बताया था कि हम इफ के साथ करली ब्रेसेस भी यूज करते हैं, है ना? ये लास्ट मैंने आपको बताया था ना कि इफ के साथ हम करली ब्रेसेस भी यूज करते हैं. बट इसके साथ मैंने आपको एक कंडीशन बताई थी कि अगर एक से ज्यादा स्टेटमेंट, अभी मैं कितनी स्टेटमेंट लिख रहा हूँ एक ब्लॉक के अंदर? आई रिक्वायर ओनली वन स्टेटमेंट, राइट? तो अगर एक से ज्यादा स्टेटमेंट अगर आपके पास हैं, अगर आप इफ के ब्लॉक में एक से ज्यादा या एल्स के ब्लॉक में एक से ज्यादा स्टेटमेंट को बाइंड करना चाहते हैं, then only the time you use what you need to use curly braces. ठीक है, now I have only a single statement in both, inside the else, inside the if I have only a single statement, and I run this code, right? I'm saving this, and after it I'm printing some backslash n. So the extra default things is little bit far from the actual output. Okay, so I run this code and I do F9. I input 10, and you know that this is a even number, so 10 is a even number, right? Okay, I need to put that backslash n in both places, because a time only a single statement will be run. I input 6, this is also even number. Let me run again. I input now 11, and this is what 11 is an odd number. You can input any number of digit, but must be in the range of integer. Okay, 1 2 3 4 is a even number. Any number of digit you can input. I say 3 2 7 6 7, and this is a odd number, क्योंकि this is the range. No, इसमें तो ज़्यादा होती है इंटीजर की रेंज, 4 बाइट का है, तो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं. तो विद इन द रेंज आप किसी को भी, किसी कितना भी बड़ा नंबर हो, आप उसको चेक करेंगे, वो इवन और ऑड आपको शो कर देगा. ठीक है, next we have another code. Just a question actually. I'm printing some statement. Printf. I'm writing a equal to है 6k, int a equal है 5k, and if a equal है 5k, तो क्या करें? if block executed. ठीक है, if block executed. Another one is I'm writing else. I'm writing here else block executed, and finally I'm printing printf hello, yeah, rest of code. ठीक है, some backslash in here. Okay, can you guess the output? Error. Okay, that's good. Is block executed? Okay, मैं यहाँ पर else लिख देता हूँ. Actually यहाँ पर else आएगा. Do you want to change your answer? Anyone want to change their answer? सर सेमीकोलन नहीं लगाया आपने. Yeah, just okay. Yeah. Now answer. If block executed or rest of code. Yeah, if block executed rest of code. ठीक है, एक्चुअली आपको लग ये रहा होगा
कि रेस्ट ऑफ कोड तो हमने एल्स के पार्ट में डाला हुआ है ना, देखने से यही लग रहा है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता। ओके, ऐसा नहीं होता। ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि यहाँ पर एक स्टेटमेंट को बाय डिफॉल्ट एक ब्लॉक के अंदर माना जाता है। अब यहाँ पे इफ ब्लॉक हमारा एग्जीक्यूट हुआ है, लेकिन ये स्टेटमेंट जो है वो एल्स के ब्लॉक में है, ना कि ये वाली स्टेटमेंट। ठीक है, यही मैं बताना चाह रहा था। और अगर आप इस स्टेटमेंट को भी अपने एल्स के ब्लॉक में रखना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर इसको करना होगा इस तरीके से बंद। अब केवल आउटपुट आएगा इफ ब्लॉक एग्जीक्यूटेड। ओके, लेट मी रन दिस कोड, if block executed, क्योंकि now this statement also bind with else. Okay, let me show you some other thing. मैं इस स्टेटमेंट को यहाँ लिखूं, यहाँ लिख दूं, ठीक है, एक लाइन बाद लिख दूं, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये स्टेटमेंट हमारी अब रन होगी क्योंकि ये else का पार्ट नहीं है। ठीक है, else का पार्ट नहीं है। मान लेते हैं कि यहाँ पर ये वैल्यू कंडीशन जो हमारी है वो ट्रू नहीं है, a इक्वल नहीं है 5 के, तो वो किस पर जाएगा, else पार्ट पे जाएगा। तो यहाँ पर अब if की जगह else पार्ट एग्जीक्यूट आएगा, else ब्लॉक एग्जीक्यूटेड, बट रेस्ट ऑफ कोड अभी भी आएगा क्योंकि वो किसी भी पार्ट में नहीं है, वो इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट है। रेस्ट ऑफ कोड इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट है, वो ना तो if के अंदर है ना तो वो else के अंदर है। हाँ, अगर आपको इसको if में रखना है या else में रखना है, उस सिचुएशन में आपको यहाँ पर करना होगा करली ब्रेसेस अप्लाई, अदरवाइज ये आप नहीं कर सकते। ठीक है, ठीक है। दूसरी बात, मैंने यहाँ पर तो इस तरीके से ये लिख भी दिया है, लेकिन अगर मैंने गलती से इफ के साथ ऐसा किया, लेट मी शो यू, मैं यहाँ पे लिख देता हूं अनदर कोड, ठीक है, सम अनदर कोड, ठीक है। इन दैट केस मैं ये पहले भी आपको बता चुका हूं कि इस सिचुएशन में ये एरर देगा। एरर इसलिए देगा क्योंकि इफ ब्लॉक मैं एक्टिवेट कर देता हूं, और इफ ब्लॉक के अंदर विदाउट कर्ली ब्रेसेस हम कितनी स्टेटमेंट रख सकते हैं, ओनली वन स्टेटमेंट, मोर देन वन हम नहीं रख सकते थे। आफ्टर ए वन स्टेटमेंट, इफ यू राइटिंग वन स्टेटमेंट, आफ्टर ए वन स्टेटमेंट इट इज एक्सपेक्टेड एल्स ब्लॉक, अगर एल्स है तो। हाँ, अगर एल्स है ही नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एल्स अगर अपने प्रोग्राम में लिखा हुआ है, देखिए मैं इसको रन करता हूँ, अभी एल्स में हटा देता हूँ और इसको मैं रन कर देता हूँ, तो दोनों रन कर रहा है ना, इफ ब्लॉक एग्जीक्यूटेड सम अदर कोड, ठीक है, नो प्रॉब्लम। बट अगर ऐसा नहीं है, एल्स पार्ट भी लगा हुआ है और इफ के साथ मैंने एक स्टेटमेंट से ज्यादा दो स्टेटमेंट दिए हैं या तीन स्टेटमेंट दिए हैं, उस सिचुएशन में आप विदाउट कर्ली ब्रेसेस ये कोड लिख ही नहीं सकते, क्योंकि अकॉर्डिंग टू कंपाइलर inside the if only single statement is allowed, and after a single statement it is expected a else block. okay, but उसकी जगह उसको क्या मिलेगा, उसको कुछ अदर इंफॉर्मेशन मिलेगी, कुछ अदर स्टेटमेंट मिलेगी जो कि एक्सपेक्टेड नहीं है। आई शो यू दिस वन आल्सो, इट्स शोइंग मी एरर, लेट मी शो यू एरर and you can see this is the error। कह रहा है error, I am highlighting, you can zoom out it, error else without a previous if। कह रहा है कि else ब्लॉक को if नहीं मिल रहा है ना, else ब्लॉक क्या ढूंढ रहा है, कह रहा है if तो है ही नहीं, इससे पहले आपने विदाउट else विदाउट if के else लगा दिया। if तो हो सकता है विदाउट else के, लेकिन else विदाउट if नहीं हो सकता। और else कितनी स्टेटमेंट एक्सपेक्टेड करेगा, केवल एक। हाँ, अगर मैं यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस अप्लाई कर देता हूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस अप्लाई कर देता हूँ, इन दैट केस नो इशू इज देयर, राइट, happily my code will be executed। let me run this code, F9, हाँ, and if block executed some other code। ठीक है, तो ये रेस्ट्रिक्शन है, if के साथ केवल एक ही स्टेटमेंट यूज कर सकते हो, एक से ज्यादा यूज करनी है यू मस्ट अप्लाई curly braces sign with the if statement। okay, remember this point। चलिए, next we have a very small code based on the if condition only।
if and else without a nested condition. Later we discuss about nested condition. Okay, and the code is like I need to input 3 numbers. I'm inputting 3 numbers. So okay, I'm taking int num1 comma num2 comma num3. 3 numbers I have. Okay, printf, I enter, and the first number. Okay, and I'm printing scanf. For saving the space, I'm writing here comma address of a, sorry, address of num. For saving the space only, I'm writing here. So in this screen, my all code will be maintained. So import second number. Okay, and finally import, I said, third number. Okay, actually what is my requirement? I'm taking 2 more variables. Okay, 2 more variables I am taking. Let's suppose I'm taking one maximum, or should I say big, one is smaller. ठीक है, bigger and smaller. ठीक है, या फिर big and small ले लेते हैं, big small, right? And what I need to do कि मुझे ये 3 नंबर इनपुट करने हैं और इन तीनों में से जो बिग वाला है वो प्रिंट करना है और जो स्मॉलेस्ट है वो प्रिंट करना है. ठीक है, तो क्या करेंगे, मान लेता हूं मैं बिग में, देखिए ऐसा मान के चलते हैं कि जो num1 है, ऐसा मान लेते हैं कि ये सबसे बड़ा नंबर हो सकता है ना, ऐसे जस्ट रैंडम. और जो स्मॉल है हमारा, वो हमारा num2 हो सकता है, ऐसा कंसीडर कर लेते हैं. ठीक है, कंडीशन चेक कराते हैं. इफ num1 स्मॉलर है num2 से, ओके, तो क्या हो, अब मुझे इसको चेंज करना पड़ेगा ना. चेंज क्या करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने num1 को तो बिग माना है और num2 को मैंने क्या माना है, स्मॉल माना है ना. तो मुझे चेंज करना पड़ेगा. मुझे बिग तो करना पड़ेगा, क्या क्या करना पड़ेगा, num2. ठीक है, और मुझे स्मॉल करना पड़ेगा num1. ठीक है, अब चेंज हो गया. ठीक है, या तो ये होगी कंडीशन या तो ये नहीं होगी. अब फाइनली हमारे पास एक मैक्स आ चुका होगा. ठीक है, अब हमें जो नेक्स्ट सिचुएशन करनी है वो करनी है हमें एक और सी के लिए. फिर से एक इफ कंडीशन लगाते हैं और हमने कहा कि बिग, जो भी मैक्स हमारे पास आया है, अगर वो स्मॉलर है num3 से, तो फिर बिग कौन सा हुआ, बिग तो num3 हुआ, राइट. और अगर ऐसा नहीं है तो फिर हमारा जो एक और हम कंडीशन कि अगर num3 स्मॉलर है min से, तो num3 को क्या दे दे, min दे दे, सॉरी min को num3 दे दे, सॉरी min को num3 दे दे. ठीक है, इतना ही करना है. Without using any nested if else and all, I'm using this code and I'm printing ठीक है, printf biggest number among 3. ठीक है, biggest number among 3 is %d comma
big. ठीक है, I'm printing this, and smallest number among 3 is, I'm printing small. Okay, I just running this code. Just wait. Yeah, I'm running this code. Okay, that's good. What happening here? Small, num3. Oh, small and small. Yeah, I'm writing the wrong variables. Just done. It's a big and small. What the issue? Ah, so many errors are there. And finally, my code is done. 10, 30, 90. So the biggest number among 3 is 90. Smallest among 3 is 10. I'm giving a backslash n here. Okay, and 2 backslash n here. So my code will visible very clearly. I'm putting 10, 223, 1672. So you can see biggest number among 3 is 1672. The smallest number among 3 is 10. Okay, so it is very simple code with only using if statement. And we can move on some different codes like I'm talking about more than up to we have if and else only. We can go through with much statements like so. My requirement is I input some percentage of the student, right? And I'm printing some comments. I'm printing some comments, right? And comments are what? Like percentage 80 से ज्यादा है, परसेंटेज अगर 80 से ज्यादा है तो प्रिंट कर एक्सीलेंट, है ना? 60 से लेस 80 है तो प्रिंट करे क्या? गुड, ठीक है. एंड रेस्ट ऑफ एवरेज, ठीक है, रेस्ट ऑफ एवरेज ये मुझे प्रिंट करना है. तो आई एम जस्ट शोइंग यू a different concept on it. Let me write one code int, or should I take float? Maybe percentage in the float. Percentage printf enter percentage. Actually I want to input aggregate percentage. Aggregate AGGRIATE aggregate. Double G. Oh, maybe some mistake. Okay. AGGREGAT aggregate percentage. And aggregate का मतलब है total percentage, right? And I'm printing here scanf percentile D, sorry, percentile F, comma, address of percentage. ठीक है. Now my next requirement is what? If percentage greater equal है 80 के, ठीक है, तो क्या प्रिंट करे? printf
excellent, done. Else if I'm giving multiple conditions, percentage ग्रेटर इक्वल है 60 के, ठीक है। तो printf good, एंड फाइनली रेस्ट ऑफ के लिए प्रिंट करे एवरेज, okay. So I am running this code, let me run, and yeah, I'm inputting percentage 100. What will be the output? अभी फिलहाल यहाँ पर कंडीशन ये है कि 100 से ज़्यादा भी कर दूँ तो भी चलेगा, बस लेकिन मान लेते हैं ना, मैंने इनपुट कर लिया, यहाँ पर डाल दी मैंने 100 या मैंने डाल दी यहाँ पर 80। देखिए 80 से बड़ा हो या बराबर हो, क्या आएगा? एक्सीलेंट, है ना। I run again. If suppose I am putting 79.9 and it is good because 80 से ज़्यादा पर है एक्सीलेंट, अगर 79.9 है तो भी क्या दे रहा है उसको? गुड, ठीक है। और ये 60 के तक होगा। लेट मी रन अगेन, आई इनपुट 59, so it is what? Average. Yeah, if I input 60 it will print good, ठीक है। So by using if else, that is also called ladder if else condition. ladder मतलब मोर देन वन, सीढ़ियों के जैसा, मोर देन वन कंडीशंस, एक के बाद एक, एक के बाद एक। इसमें होता ये है कि सबसे पहले इस कंडीशन को चेक करेगा, ये सारी ही कंडीशन को ग्रुप्ड मानता है, ये सारी ही कंडीशन को, इन सबको पूरा एक ब्लॉक मानेगा, ठीक है। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि इफ के साथ आप एक से ज्यादा कंडीशन देना चाहें तो आप फिर यहाँ पर इंडिविजुअल ब्लॉक लगाएंगे, लेकिन ये सबको, पूरे इसको, इफ एल्स को एक एक कोड लेके मानता है। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हुई तो ये दोनों रन नहीं करेंगे। अगर ये वाली कंडीशन अनसेटिस्फाई हुई तभी वो इस वाली कंडीशन पर आएगा और फिर इस वाली कंडीशन को रन, अगर ये सही होती है तो इसको रन करेगा, फिर इसको रन नहीं करेगा। अगर ये कंडीशन गलत होती है और नेक्स्ट कंडीशन भी गलत होती है तो फाइनली फिर वो थर्ड कंडीशन पर रन करेगा, दोनों अबव कंडीशन से कोई उसे मतलब नहीं है, ठीक है। तो इस ग्रुप में से कोई एक स्टेट, एक ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। एक ब्लॉक के अंदर मल्टीपल स्टेटमेंट कितनी भी हो सकती हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कोई भी एक इफ या एल्स इफ या एल्स, ठीक है, एनी नंबर ऑफ इफ एल्स कंडीशन कैन बी देयर। लेट मी शो यू, और भी ये थोड़ा बड़ा हो सकता है। आई एम गिविंग सम मोर, आई एम गिविंग इट्स अ बेटर, ओके, and I am giving greater equal to 33, so I am giving fine, and finally I am giving average, okay. If I run this code, I am giving 59, in that situation giving fine because 60 पर जाके आपको बेटर मिलेगा, लेकिन उससे पहले आपको क्या मिलेगा? 33 से 59। If you by mistake input less than 33, 32.89, in that case average। तो ऐसे आप मल्टीपल कंडीशंस यहाँ पर लगा सकते हैं, ठीक है। एल्स यहाँ पर ऑप्शनल होता है, आप इसे लगाइए मत लगाइए, डिपेंडिंग करेगा आपके कोड पर, ठीक है। So these are the some basic codes we have discussed today, based on the next ladder if else only, and tomorrow we discuss some logical operators, okay, then few more control statements. So it is complete from my side today.